بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے کون۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے دنیا کی طرف۔ اس کے بعد اب نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کون تھے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹوں میں پہلے بیٹوں میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حضرت شیث۔ اکارڈنگ ٹو بائبل کے انوسار وہ بھی ایک نبی تھے، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور ان کی اولاد میں حضرت شیث کی اولاد میں ایک نبی آئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ اکارڈنگ ٹو بائبل اور اکارڈنگ ٹو قرآن دونوں کے اکارڈنگ یہ نبی ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ بھی یہ نبی ہے، قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی زیادہ کچھ تذکرہ نہ اسلام میں ملتا ہے نہ کرسچینٹی میں ملتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں نبی آئے تھے، ان کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ جو اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی تھے اور دنیا کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے پر رسول نہیں تھے، دنیا کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا کیا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اللہ کی طرف سے چنا ہوا بندہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور رسول اللہ کی طرف سے چنا ہوا نبی ہوتا ہے، نبیوں میں سے ہی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک چنتے ہیں اور بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے چنا ہوا بندوں میں سے چنا ہوا ایک شخص، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبیوں میں سے چنا ہوا ایک شخص رسول ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے چنا ہوا ایک نبی ہوتا ہے
जिसको एक नई शरीयत या फिर किताब दी जाती है, एक नया लॉ दिया जाता है। नबी अल्लाह की तरफ से चुना हुआ बंदा होता है जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाता है। रसूल अल्लाह की तरफ से चुना हुआ एक नबी होता है जिसको एक नया लॉ, एक नया कानून दिया जाता है, एक नई शरीयत दी जाती है, उसको रसूल कहते हैं। तो ये फर्क होता है नबी और रसूल में। तो नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले रसूल थे। अब उसके बाद हम देखेंगे नूह अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह क्या था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में मुब्तला थी। वो अल्लाह के साथ शरीक क्या करते थे, लोगों को किसी और को शरीक क्या करते थे। नूह अलैहिस्सलाम का जो गुनाह था वो था शिर्क। तो हम देखेंगे कि शिर्क क्या होता है। शिर्क के मायने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, एक अल्लाह ताला को छोड़कर उसके अलावा किसी और की इबादत करना, या फिर अल्लाह की जात में किसी को भी किसी भी तरह शरीक करना, इसको शिर्क कहते हैं। तो शिर्क के माने होता है या तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर रहे लेकिन अल्लाह की जात में किसी को शरीक करते हैं, जैसे कि नौज़ुबिल्लाह कहना कि ये अल्लाह का भाई है, ये अल्लाह का बेटा है, या अल्लाह की माँ है, अल्लाह की बीवी है, जो भी है, किसी भी तरह अल्लाह की जात में किसी को भी शरीक करना, ये शिर्क होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जो गुनाह था वो था शिर्क। तो शिर्क के मायने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, या अल्लाह की जात में किसी को भी किसी भी तरह शरीक करना, उसको शिर्क कहते हैं। अब इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कहानी किस तरह से शुरू होती है हम देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने भेजा था नूह को उनकी कौम की तरफ कि खबरदार कर दो अपनी कौम को उससे पहले कि आ धमके उन पर एक दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ से भेजा कि खबरदार कर दो अपनी कौम को, इससे पहले कि हमारा अजाब उनके पास आ पहुंचे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर एक खबरदार करने वाला हूँ। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आगाह कर दिया कि मैं खबरदार करने आया हूँ, मैं तुम्हारे को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि तुम लोग अल्लाह की बंदगी करो और उसका तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो और उसको फॉलो करो, उसका तकवा अख्तियार करो, उसी को से डरो, उसको फॉलो करो और मेरी इताअत करो, मतलब मेरा कहा मानो, क्योंकि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी चुना था और रसूल भी। मेरी इताअत करो, अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें मोहलत दे देगा एक वक्त मुईन तक। अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ गुनाहों को माफ कर देगा और तुमको मोहलत दे देगा, टाइम दे देगा। अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जब आ जाएगा तो उसे मौखिर नहीं कर सकोगे, तो उसे मौखिर नहीं किया जा सकेगा। काश के तुम्हें मालूम होता, मौखिर का मतलब होता है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसको डिलेट नहीं किया जा सकता। जब अल्लाह का वक्त आ जाएगा मुकर्रर, अल्लाह जो वक्त पे डाल दिया वो वक्त आ जाएगा, तो उसको उसके बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको डिले नहीं किया जा सकता। अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जब आ जाएगा तो उसे मौखिर नहीं किया जा सकेगा। काश के तुम्हें मालूम होता। नूह ने अर्ज किया, परवरदिगार, मैंने तो अपनी इस कौम को रात दिन दावत दी है। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए परवरदिगार, मैंने तो अपनी इस कौम को रात दिन दावत दी है, मैंने रातों में भी दावत दी है, दिन में भी दावत दी है, लेकिन मेरी इस दावत ने इनमें कुछ इजाफा नहीं किया सिवाय फरार के। लेकिन मेरी दावत ने इन लोगों में कुछ इजाफा नहीं किया, कुछ लोग भी मेरी दावत को कबूल नहीं किए, उसके बजाय सिवाय फरार के, उसके बदले वो लोग भागने लग गए, मेरे को देख के उल्टा भाग जाते, वो लोग फरार हो जाते। और मैंने जब भी इन्हें पुकारा ताकि तू इनकी मगफिरत फरमा दे, मैंने इनको पुकारा, बुलाया तेरी तरफ ताकि तू इनकी मगफिरत फरमा, इनको माफ कर दे,
तो इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली। तो ये लोगों ने क्या किया, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेके क्या के सुनने नहीं, वैसा करके चले गए। अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली और अपने कपड़े भी अपने ऊपर लपेट लिए। उंगलियों में, कानों में उंगली डाल लिए, ऊपर से ऊपर कपड़े डाल लिए के देखे ही नहीं हम इनको, बोल के भाग जाने के लिए ऊपर लपेट लिए। और वो जिद पर अड़ गए और उन्होंने घमंड किया बहुत बड़ा। और उन्होंने क्या किया, घमंड किया। फिर मैंने उन्हें बुलंद आवाज से भी पुकारा। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से, मतलब ओपनली इनवाइट करे उन लोगों को दावत के लिए। फिर मैंने उन्हें आलानिया दावत दी। आलानिया का मतलब पर्सनली, छुपाकर, अकेले में। पहले फिर मैंने उन्हें बुलंद आवाज से पुकारा, ओपनली भी पुकारा। उसके बाद फिर मैंने उन्हें आलानिया दावत दी, मैंने उन्हें पर्सनली भी दावत दी कि हो सकता है सबके सामने करने से घबरा रहे हो, इसलिए पर्सनली भी जाकर दावत दी। फिर मैंने उन्हें आलानिया दावत भी दी और खुफिया तौर पर भी समझाया। उसके बाद खुफिया तौर पर पर्सनली समझाया। बस मैंने उनसे कहा कि तुम अपने रब से इस्तिगफार करो। अपने रब से इस्तिगफार का मतलब माफी मांगो, अपने रब से माफी मांगो। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, वो तुम पर बारिश बरसाएगा और वो बढ़ा देगा तुम्हें माल और बेटों में, और तुम्हें बागात अता करेगा। वो तुम्हारा माल में इजाफा करेगा, तुमको अमीर करेगा और तुम्हें बेटे देगा, बेटों में, और तुम्हें बागात अता करेगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, यानी कि गार्डन्स क्रिएट करेगा यहाँ पर। बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए चश्मे नहरें रवा कर देगा। और उसके बाद चश्मे यानी कि रिवर्स सीज, पानी, बेसिकली पानी अता करेगा तुम्हारे लिए, नहरें रवा कर देगा। तुम्हें क्या हुआ है, तुम अल्लाह की अजमत के उम्मीदवार नहीं हो? क्या हो गया तुम लोगों को, अल्लाह से शक करते हो तुम लोग? अल्लाह की बड़कपन के तुम लोग उम्मीद नहीं रखते कि अल्लाह बड़ा है? अल्लाह अल्लाह देने वाला है, इस बात की उम्मीद नहीं है, इस पे शक करते हो तुम लोग? तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह के अजमत के उम्मीदवार नहीं हो? और उसने तुम्हें पैदा किया है तरह तरह से, उसी ने तुमको अलग अलग तरह से पैदा किया। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसे बनाए सात आसमान, और सात आसमान एक के ऊपर एक, और उनके अंदर उसने चांद को रोशनी और सूरज को चिराग बनाया। तो क्या तुमने नहीं देखा, या क्या मतलब क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने कैसे बनाए सात आसमान, सात आसमान क्रिएट करे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सात आसमान क्रिएट करे, और उनमें उनके अंदर उसने चांद को रोशन किया और सूरज को चिराग बनाया। सूरज को चिराग बनाया मतलब सूरज को जलता हुआ बनाया, और चांद को रोशन बनाया। जलने में और रोशन में फर्क होता है। रोशन चीज मतलब ये रिफ्लेक्ट होती है। ये एक साइंटिफिक भी है, कह सकते हैं एक मायने में, क्योंकि चांद को रोशन करने का मतलब, रोशन की चीज जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। चांद रिफ्लेक्टेड लाइट है। जो चांद की जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। और सूरज को चिराग बनाया, चिराग खुद से जलता है, चिराग की जलने की रोशनी होती है। तो चिराग की सन की ओन लाइट है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसे बनाए सात आसमान, और एक के ऊपर एक, सात आसमान एक के ऊपर एक, और उनके अंदर उसने चांद को रोशनी और सूरज को चिराग बनाया। और अल्लाह ने तुम्हें उगाया जमीन से, जैसे सब्जा उगाया जाता है। अल्लाह ने जमीन से हमको बनाया, यानी कि मट्टी से बनाया। ये हमने ऑलरेडी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वीडियो में देख लिया है। अल्लाह ने तुम्हें उगाया जमीन से, यानी कि मट्टी से हमको बनाया। फिर वो तुम्हें लौटा देगा उसी में। उसके बाद जब मर जाएंगे तो उसी में वापस हम चले जाएंगे, हमको लौटा देगा। और फिर निकालेगा तुम्हें जैसे निकाला जाता है। उसके बाद कयामत के दिन फिर से उगाएगा, फिर जिंदा करेगा, फिर निकालेगा तुम्हें जैसे निकाला जाता है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फैला दिया। जमीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैला दिया है, ताकि हम उस पर चल फिर सके, ताकि तुम चलो फिरो उसमें खुशादा रास्तों पर, अलग अलग रास्तों पर हम चलो और फिर सके।
ताकि तुम चलो फिर उसमें कुशादा रास्तों पर। नूह ने कहा, परवरदिगार, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है। इन्होंने नाफरमानी की, मेरी बात नहीं सुन रहे लोग। मैं तो अल्लाह ताला नूह अलैहि सलाम को भेजे थे क्या पैगाम सुना, लेकिन नूह अलैहि सलाम पैगाम पहुंचा, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं माने। नूह ने कहा, परवरदिगार, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और इन्होंने उन लोगों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं बढ़ाया। यानी कि माल और औलाद मतलब वहाँ के अमीर लोगों के बात सुनने, ताकि माल आएगा उनके पास भी। अमीरों की बात सुनेंगे तो माल आएंगे ऑब्वियसली। उन लोगों की पैरवी की। इन्होंने मेरी नाफरमानी की और इन्होंने उन लोगों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं बढ़ाया। उनके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है, मगर इसमें, इस माल, ऐसे माल में। और उन लोगों ने एक चाल भी चली, बहुत बड़ी चाल। उसके बाद उन लोगों ने एक चाल चली और इन्होंने कहा कि तुम अपने उन माबूदों को हरगिज छोड़ ना बैठना। उनके कौम के लोगों ने कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज नहीं छोड़ना। अल्लाह के अलावा तुम जिसको शिर करते हो, जिनको माबूद बना लिया है, जिनकी इबादत तुम करते हो, उनको हरगिज नहीं छोड़ना। उन माबूदों को हरगिज छोड़ ना बैठना। हरगिज मत छोड़ना वदत को, सेवा को, याकूस को, याऊख को और नसर को। ये उनके माबूदों के नाम थे। और इन्होंने तो बहुतों को बहका दिया। उसके बाद बहुतों को बहका भी दिया उन लोगों ने। बहुत लोगों को इसी तरह से बोलकर, तुम मत छोड़ो अपने माबूदों को बोलकर बहका दिया। और इन्होंने तो बहुतों को बहका दिया है। और अब तो उन जालिमों के लिए सिवाय गुमराही के और किसी चीज में इजाफा ना फरमा। तो उसके बाद नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, इन्होंने बहुत लोगों को बहका दिया, अब तू इन जालिमों के लिए, अब इन लोगों के लिए सिवाय गुमराही के, सिवाय ये लोग गुमराह होंगे उसके अलावा और किसी चीज में अब इजाफा मत फरमा, बल्कि अल्लाह ताला से शिकायत कर रहे हैं, सलाम दुआ करे। अपनी खताओं की वजह से ही वो गर्क किए गए। वो लोग अपने गुनाहों की वजह से ही डुबोए गए और दाखिल कर दिए गए आग में, जहन्नम की आग में दाखिल किया जाएगा। वो लोग दाखिल कर दिए गए। तो ना पाया इन्होंने अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल कोई मददगार। उसके बाद इन्होंने अल्लाह के अलावा अपने लिए कोई मददगार नहीं पाया। और नूह ने कहा, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम फरमाए, ए मेरे परवरदिगार, अब तू इस जमीन पर काफिरों को बसता हुआ एक घर भी मत छोड़। अब उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, जब ये लोग बात नहीं मान रहे, ये लोग कुफ्र पे अड़ गए और घमंड करने लगे, तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे कि "ए मेरे परवरदिगार, अब तू इस जमीन पर काफिरों का बसता हुआ एक घर भी मत छोड़। एक घर भी काफिरों का इस जमीन पर अब मत छोड़ तू। अगर तू इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे। अगर तू इन्हें छोड़ दिया तो जो लोग तेरे रास्ते पर है, ये लोग उनको गुमराह कर देंगे। अब ये लोग तो ऑब्वियसली नहीं आ रहे इस्लाम की तरफ, लेकिन अगर तू इनको छोड़ दिया, जो ऑलरेडी जो लोग आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं, सही रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, ये उनको भी गुमराह कर देंगे। अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और इनकी नस्लों में भी अब गुनाहगार और काफिर लोगों के सिवा और कोई पैदा नहीं होगा। अब इनके नस्लों में भी ना गुनाहगार और काफिर के अलावा अब कोई पैदा भी नहीं होगा। तो तू इनको मत छोड़। परवरदिगार, मगफिरत फरमा दे मेरी और मेरे वालिदैन की। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार, मगफिरत फरमा दे मेरी मगफिरत फरमा। सबसे पहले मेरी मगफिरत फरमा दे, क्योंकि सबसे पहले अगर उन्होंने नबी थे, रसूल थे, उसके बावजूद भी नबियां शिरक नहीं करते, लेकिन छोटे मोटे गलतियां नबियों से भी होते हैं। तो सबसे पहले परवरदिगार, मगफिरत फरमा दे मेरी और मेरे वालिदैन की। उसके बाद मेरे वालिदैन की। और जो कोई भी मेरे घर में दाखिल हो जाए ईमान के साथ जो कोई मेरे घर में दाखिल है उनकी भी, ईमान के साथ उसकी भी। और तमाम मुमिन मर्दों और मुमिन औरतों की भी। तमाम मुमिन मर्द, मुसलमान मर्द जितने भी थे, तमाम मर्दों और औरतों की भी मगफिरत फरमा दे। और इन जालिमों के लिए
تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے سوائے آ، کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے، بربادی اور تباہی کے علاوہ آپ ان میں کسی چیز کی اضافہ مت کر۔ اس کے بعد یہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے بیچ 50 برس کم 1000 برس۔ 50 برس کم 1000 برس بولتے ہیں مطلب 950 سال، 950 سال۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اس جگہ پر رہے، ان کے بیچ میں دعوت دیتے رہے۔ اب وہ پیدائش سے لے کر 950 سال تھا یا نبوت ملنے کے بعد 950 سال تھا، وہ اللہ عالم، لیکن 950 سال ان کے بیچ تھے۔ تو وہ رہا ان کے بیچ 50 برس کم 1000 برس، 1000 سال سے۔ تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ اس کے بعد ان کو ایک طوفان نے آ کر پکڑا ظالم لوگوں کو۔ اس کے بعد دیکھیں گے اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا تھا ان کے اوپر۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اور اس کی قوم کی طرف، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو آپ نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بھلا خبردار کرنے والا ہوں، میں خبردار کرنے والا ہوں، تم کو وارن کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پوجو، کسی اور کی عبادت مت کرو، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا، ایک بہت بڑے دن کے، تم کے ہر اوپر ایک بہت بڑا دن کا عذاب آئے گا، اس بات کا ڈر ہے مجھے۔ اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان کے قوم کے سردار جو ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ تو کیا ہوا، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، سردار نے، لیڈرز ہیں ان کے قوم کے جو لیڈرز تھے، بڑے لوگ تھے، کہا جنہوں نے کفر کیا، جو کفر میں تھے، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، آپ بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہیں، ہم اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم نہیں مانتے کہ آپ نبی ہے یا اللہ کے رسول ہے۔ ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، مگر اپنے جیسا ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ ادنا درجے کے مطلب چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے ذات کے لوگ ہیں، لو کلاس یا پھر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، چھوٹے ذات کی مطلب چھوٹے لوگ ہیں انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، چھوٹی فیملی سے، اسمال فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتا اپنے مقابل میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت۔ اور جب ہم کمپیئر کریں گے آپ کو ہم سے، ہمارے مقابل ہم سے کمپیئر کریں گے، تو آپ کچھ فضیلت نہیں رکھتے ہمارے سامنے، کچھ بڑا ہی نہیں رکھتے، ہم آپ سے بڑے درجے میں ہیں۔ مطلب وہ لوگ لیڈرز تھے وہاں کے، پیسے والے لوگ تھے، تو اس لیے ان کے پاس میں آپ کے ہمارے مقابل آپ کا کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہنے لگے۔ اس بات سے ہم کو یہ بھی ہسٹری میں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے، اتہاس اس بات کی گواہ ہے، ایون پروفٹ محمد کے زمانے میں جو سب سے پہلے ہر وقت میکزیمم 90% آف دا ٹائم ایمان لانے والے لوگ چھوٹی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ جیسا پیسہ آنے کے بعد میں انسان کے پاس گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے کمانا حرام ہے، پیسے آپ کما سکتے ہیں، جتنا چاہے اتنا کما سکتے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے، پیسہ جتنا زیادہ آئے گا انسان کے پاس اتنا زیادہ گھمنڈ بڑھ جاتا ہے، اتنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں
तुम लोगों में कोई भी फजीलत, बल्कि हमारा गुमान तो यही है कि तुम लोग झूठे हो। उल्टा नूह अलैहिस्सलाम को उन लोग का ताना देना शुरू कर दिया कि तुम लोग आज झूठे हैं, हम झूठे नहीं है, तुम लोग झूठे हैं, बल्कि उनको बोल दे रहे उल्टा। नूह ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, जरा गौर करो, थोड़ा सा ध्यान दो, गौर करो। अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर था और उसने मुझे अपने पास से खास रहमत भी अता फरमा दी है। अल्लाह ताला ने कहा, मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील लेके आया हो तुम्हारे साथ, उसके बाद भी तुम लोग कह रहे कि हम लोग झूठे हैं। वाज़ेह दलील पर था और उसने मुझे अपने पास से खास रहमत भी अता फरमा दी है, उसके ने खास रहमत अता की मेरे ऊपर, मेरे को नबी बनाया, जिसको तुम्हारी नजरों से पोशीदा रखा गया है, जो तुम्हारी नजरों से पोशीदा है, क्योंकि नबी तुम लोग नहीं है, नबी मैं हूं, तो अल्लाह की वही मेरे ऊपर आ रही है, तुम्हारे ऊपर नहीं आ रही है। जिसको तुम्हारी नजरों से पोशीदा रखा गया है, तो क्या हम चिपका दे तुम पर उसको जबरदस्ती, जब तुम लोग उसको नापसंद करते हो। तुम लोग अभी अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं लाए हो, तुम लोग नापसंद करते हो, तो क्या जबरदस्ती चिपका देना? हम चाहे तो अल्लाह चिपका दे सकता है तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती, तो क्या जबरदस्ती चिपका देना तुम्हारे ऊपर, हम लोग डाल देना क्या, बोल के नूह अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करे। चाहे अल्लाह तो डाल दे भी सकता, जबरदस्ती करने करना क्या, और तुम्हारे पास को अल्लाह चाहने के बाद कोई ऑप्शन भी रहता, लेकिन अल्लाह जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि दीन में जबरदस्ती नहीं है। और ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इसके बदले में कोई माल तलब नहीं करता। इसके बदले में मैं तुमसे कोई माल की आरजू भी नहीं रखता, कोई माल तलब नहीं करता, कोई अमाउंट भी मैं ले रहा हूँ नहीं, फ्री में कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हारे लिए कोई पेमेंट नहीं रखा, कोई फीस नहीं रखा, फ्री में तुम्हारे को हक की तरफ बुला रहा हूँ। मेरा अजर तो अल्लाह ही के जिम्मे है। मेरा अजर कहाँ है? अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह दी मेरे को अजर। और जो लोग ईमान लाए हैं, मैं उनको धत्कारने वाला भी नहीं हूँ, और जो ईमान लाए हूँ उनको हकालूंगा नहीं मैं यहाँ से, हाँ उनको बराबर रखूंगा अपने साथ। वो यकीनन अपने रब से मिलने वाले हैं। यकीनन वो क्या करेंगे? जो भी ईमान लाए अपने रब से मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम लोग जहालत में मुब्तला हो गए हो, लेकिन तुम लोग जाहिल काम कर रहे हो, जहालत में मुब्तला हो गए हो, वो यानी कि गलत काम कर रहे हो। और ए मेरी कौम के लोगों, जरा सोचो कि अगर मैं उनको अपने यहाँ से भगा दूंगा, मतलब जो लोग ईमान लाए मैं उनको भगा दूंगा अपने यहाँ से। जरा सोचो, अगर मैं उनको अपने यहाँ से भगा दूंगा, तो लोगों मेरी मदद करेगा, भगा दूंगा, तो कौन मेरी मदद करेगा? मेरी मदद कौन करेगा? उसके बाद में उनको तो मैं भगा दूंगा, फिर अल्लाह से मेरे को कौन बचाएगा? तो कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के मुकाबले में? तो क्या तुम लोग गौर नहीं करते? तो इतनी सी बेसिक बात, इतनी सी कॉमन चीज गौर नहीं करते तुम लोग? अगर मैं अल्लाह मेरे को हुक्म दिया, उसके बाद में वो लोग ईमान भी ले आए, उसके बाद मैं नहीं कर तो बोल के उनको भगा दूंगा, तो अल्लाह से मेरे को कौन बचाएगा? मेरे को मेरी कौन मदद करेगा? तो कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के मुकाबले में? तो क्या तुम लोग गौर नहीं करते? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब कायम रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह के खजाने हैं मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूँ, तुम लोग से बहुत कुछ मेरी फॉलो करने पर मैं बहुत पैसे दूंगा, नहीं कहता। क्योंकि अल्लाह ईमान की बात है, अल्लाह अगर पैसे देने से तुम आए तो फायदा भी नहीं है वैसे भी। मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब कायम रखता हूँ, ना मैं गैब कायम रखता हूँ, मेरे को हर चीज मालूम भी नहीं है, गैब कायम नहीं है मेरे पास। और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। और ना मैं ये कह सकता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर देखती है, जो तुम्हारी आंखें जिनको हकीर मतलब छोटा देखती है। अभी पिछली आयत में हमने देखा कि काफिर के जो सरदार थे, इनके इनके कौम के सरदार नूह अलैहिस्सलाम के फॉलोअर, जो छोटे लोग थे, वो लोग ईमान लाए थे, तो उनको बहुत छोटा समझती थी। और ना मैं ये कह सकता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर यानी कि छोटा देख रही है, कि अल्लाह उन्हें कोई खैर नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह उन्हें कोई खैर नहीं देगा, वो लोग
स्टेटस में भले ही छोटे होंगे लेकिन अल्लाह उनको अजर देगा, बराबर उनको खैर देगा। जिन्हें तुम्हारी आंखें छू के अल्लाह उन्हें कोई खैर नहीं, ना मैं ये कह सकता उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर देख रही हैं कि अल्लाह उन्हें कोई खैर नहीं देगा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, उन्हें खैर देगा अल्लाह। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में, उनके दिलों में क्या है अल्लाह जानता कि वो ईमान वाले हैं या नहीं। अगर मैं उनको दूर कर दूं तब तो यकीनन मैं खुद जालिमों में से हो जाऊंगा। अगर मैं उनको दूर कर दूं, उनको ईमान लाने के बाद भी उनको भगा दूं, यहाँ से हकल दूं, तो जब तो मैं खुद ही जालिमों में से हो जाऊंगा, मैं खुद जुल्म करने वाला हो जाऊंगा उनको अगर सपोर्ट नहीं करूंगा मैं तो। इन्होंने कहा, उसके बाद उनके खाम के जो सरदार थे उनके सरदारों ने कहा, खाम के लोगों ने कहा, ए नू, तुमने हमसे झगड़ा किया और खूब झगड़ा किया, बस ले आओ हम पर वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो अगर तुम सच्चे हो। अब इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के खाम के जो लोग जो काफिर थे उन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और खूब झगड़ा किया, तुम बहुत टाइम से बोल रहे हो, बहुत टाइम से झगड़ रहे हो हमसे, बहुत टाइम से हमसे बहस कर रहे हो। अ, बस अब ले आओ, अ, ले आओ हम पर वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। बहुत झगड़ा कर लिए, बहुत बहस कर लिए, ठीक है, तुम बोल रहे हो ना अल्लाह का अजाब आएगा, तो अब ले आओ वो अजाब को ला दो हम पर, ठीक है। अब बोलने की जरूरत नहीं है, अजाब ला दो हमारे ऊपर। इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस तरह से जाहिल हो गई थी कि अब वो अजाब लाने के लिए कहने लग गई, "ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और खूब झगड़ा किया, बस ले आओ हम पर वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो अगर तुम सच्चे हो।" इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा। आपने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की ने फरमाया कि वो अजाब तो अल्लाह ही लाएगा तुम्हारे ऊपर, वो अजाब मैं नहीं लाने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर, वो अजाब तो अल्लाह ही लाएगा, अल्लाह लाने वाला है वो अजाब तुम्हारे ऊपर, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो अजाब जब लाना है, जब अल्लाह ले आए तो अल्लाह ही लाएगा तुम्हारे ऊपर अगर वो चाहेगा, और फिर तुम उसकी शिकस्त नहीं दे सकोगे, उसको शिकस्त नहीं दे सकोगे, उसको टाल नहीं सकोगे तुम। जब अल्लाह अजाब ला देगा उसके बाद उसको हटा नहीं सकोगे, तुम टाल नहीं सकोगे। और तुम लोगों को मेरी नसीहत कुछ फायदा नहीं दे सकती अगर मैं तुम्हें नसीहत करना भी चाहूं, अगर अल्लाह ही तुम्हारी गुमराही का फैसला कर चुका हो। और अगर तुम लोगों को मैं अगर नसीहत करूं भी लेकिन अल्लाह तुम्हारे गुमराही का फैसला कर चुका है, अल्लाह तुमको गुमराह कर रहा है, तो मेरी नसीहत उसके बाद भी फायदा नहीं है। मैं तुमको कितना भी समझा लूं, अगर अल्लाह तुम्हारे हिदायत देने के काबिल नहीं है, अल्लाह हिदायत नहीं देना चाह रहा तुम्हारे, तुम अल्लाह की हिदायत लेने के काबिल नहीं हो, तो फायदा नहीं है, मेरी नसीहत तुम्हारे कुछ फायदा नहीं करेंगे, अल्लाह तुम्हारे को हिदायत देने का अगर नहीं चाह रहा तो। तुम्हारी गुमराही का फैसला कर चुका है, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुमको लौटा दिए जाओगे, तुम लौटा दिए जाओगे, क्योंकि वही तुम्हारा रब है, उसके अलावा कोई रब नहीं है, वही तुम्हारा रब है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, उसी की तरफ जाना है। क्या ये कहते हैं उसने, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ये कहते हैं उस मोहम्मद ने इस कुरान को घड़ लिया है, कुरान को यानी कि खुद से अपनी तरफ से लिख लिया है। उन लोग ऐसा कहते हैं, क्या काफिर इस तरह से कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि उसने इसको घड़ लिया है। आप कहिए कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उनको इस तरह से कहिए इसका जवाब, कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है, कि मोहम्मद अगर मैंने खुद से लिख लिया है इसको, तो उसका गुनाह मुझी पर आएगा, उसका गुनाह मेरे को ही होगा, उसका भी गुनाह होगा। अगर मैं खुद से लिख लिया हो तो मेरे को गुनाह होगा, उसका मुझी पर आएगा। और मैं बरी हूँ उससे जो जुर्म तुम कर रहे हो, मैं उससे बरी हूँ इस जुर्म से, मैं नहीं लिखता अपनी तरफ से, यानी कि मैं अपनी तरफ से खुद से नहीं लिखता जो तुम लोग करते हो। तुम लोग अपनी तरफ से किताबें लिखते हो और कहते हो कि ये अल्लाह की किताब है, मैं इस तरह से नहीं करता। क्या ये कहते हैं कि उसने इसको घड़ लिया है। आप कहिए कि अगर मैंने इसे घड़ लिया है तो उसका गुनाह मुझी पर आएगा,
اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو، جو جرم تم تو کرتے ہو، میں اپنی طرف سے نہیں لکھتا، کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور وہی کر دی گئی نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجائی گئی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کیا اور ان کو بتا دیا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ لوگ لا چکے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی نیا ایمان تمہاری قوم میں سے اب نہیں لائے گا، جو لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب نیا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تمہاری قوم میں سے۔ اور وہی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ دکھ میں نہ آئیے، اب جو وہ لوگ کر رہے ہیں آپ کی کچھ بھی غلطی نہیں ہے اس میں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے تو آلریڈی اللہ کا جو پیغام آیا تھا وہ ان کو پہنچا دیا، اب وہ لوگ مان نہیں رہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، آپ غمگین مت ہوئیے۔ اور آپ کشتی بنائیے ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرے۔ اور آپ کشتی بنائیے ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور جو ظالم ہے ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا۔ جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھ بولو بھی نہ، کو میں ان کو ہدایت دو، مہلت دو، کچھ بھی مت بولو، اب میں کچھ نہیں ہو سکتا اس میں، ان کے بارے میں مجھ سے کچھ بات مت کیجیے گا۔ اب یہ سب کے سب ڈوبائے جائیں گے، اب ڈوبائے جائیں گے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اب کشتی بنا رہے تھے، اور آپ کشتی بنا رہے تھے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار بناتے وقت، جب قوم کے سردار دیکھتے ان کو تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے، مذاق اڑانے لگتے نوح علیہ السلام کا۔ نوح فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا کہ اب تم ہنستے ہو۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے وہ دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ ہنسنے لگے نوح علیہ السلام پر کہ آس پاس تو کوئی پانی کا دور دور تک اندیشہ نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں یہاں پر، بارش ہو رہی نہیں ہے، تو کہاں سے تم کشتی بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ بلکہ مذاق اڑانے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارا اگر مذاق اڑا رہے تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم لوگ تمہارا مذاق اڑائیں۔ نوح فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے کہ تم ہنستے ہو، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب، ان قریب وہ وقت بہت قریب آ گیا کہ تم کو پتا چلے گا، تم جان لو گے، کیونکہ ان کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ لے آؤ وہ عذاب، اب تم کہہ رہے ہو نا بہت ٹائم سے، بس اب ہم تو ایمان نہیں رہ رہے، تم لے آؤ عذاب کو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کس پر آتا پتا چلے گا تمہیں، جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے، قائم رہنے والا قیامت کے دن کا۔ پہلے تو یہ عذاب جو اب آنے والا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن کا عذاب کس پر آتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، جو ہمیشہ قائم رہے گا، وہ تو ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا، تنور کہتے ہیں عام لینگویج میں کہتے ہیں اوون کو، اوون تو اس زمانے میں پریزنٹ نہیں تھا، یعنی کہ گرم ہونے والی چیز، یعنی کہ چولہا، جو بھی چولہا تھا اس ٹائم پہ پتہ نہیں کیا تھا، لکڑی کا تھا یا کس طرح سے پکاتے تھے، پر جو بھی تھا اس میں سے پانی ابل کر بہنے لگ گیا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا، ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمہارے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، تمام جاندار جتنے بھی جانور ہیں، انسانوں کی تو بات ہو گئی، جو بھی ایمان والے ہیں وہ کشتی میں جائیں گے، اس کے علاوہ تمام جانداروں کا جتنے بھی جانور ہے یا پرند ہے یا کیڑے مکوڑے جو بھی جتنے بھی ہیں تمام چیزوں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، تاکہ آگے ان سے نسلیں چلتی رہے۔ ایک کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے
जिनके बारे में पहले हुक्म गुजर चुका है। अहल व अयाल मतलब बीवी और बच्चों को भी रख लो, उनके अलावा जिनके बारे में पहले हुक्म गुजर चुका है, यानी कि जो ईमान नहीं लाए तुम्हारे घर में से, जो ईमान लाए उनको रख लो तुम्हारे घर में से, और जो नहीं लाए उनके अलावा अहल व अयाल को भी, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले हुक्म गुजर चुका है। और इन लोगों को भी जो ईमान लाए, उसके अलावा तुम्हारी फैमिली से बाहर जितने भी लोग ईमान ला चुके सबको रखो। हुक्म गुजर चुका है और उन लोगों को भी जो ईमान लाए हैं, और नहीं ईमान लाए थे आपके साथ मगर बहुत ही कम, बहुत कम लोग थे उस जमाने में भी उनके साथ जो ईमान लाए थे। 950 साल उन्होंने दावत दी, उनके बीच में रहे, उसके बाद भी उनके पास ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे। हम्म। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर जोश से उबल पड़ा, उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा, तनूर में से पानी उबल पड़ा, और हमने कहा इतना पानी उबल गया कि पूरा जमीन भर गई पानी से, और बारिश भी होने लगी। जो उससे उबल पड़ा, हमने कहा एनू, अपनी उस कश्ती में तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा रख लो, अपने अहल को भी, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले हुक्म गुजर चुका है, और इन लोगों को भी जो ईमान लाए हैं और नहीं ईमान लाए थे आपके साथ, मगर बहुत ही कम, बहुत कम लोग ईमान लाए थे। और नूह ने फरमाया सवार हो जाओ उसमें अल्लाह के नाम के साथ। नूह फरमा दिए, नूह अलैहिस्सलाम के जितने भी ईमान वाले हैं, सवार हो जाओ इसमें, कश्ती में चढ़ जाओ अल्लाह के नाम के साथ ही। अल्लाह के नाम के साथ ही है उसका चलना और उसका ठहरना। अब ये कश्ती अल्लाह के नाम के साथ चलेगी और उसी के साथ फिर जब उसका हुक्म आएगा तभी रुकेगी। बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक अल्लाह क्या है, बख्शने वाला है। और वो चल रही थी उन सब को लेकर पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान। मौजे मतलब वेव्स आने लग गए, उसके बाद इतना पानी उबल पड़ा, पूरा वेव्स तक आने लग गए। पूरा वेव्स हिंदी में क्या कहते हैं, मौजे मौजे वेव्स या टाइड्स कह सकते हैं। मौजों के मौजों के दरमियान, उतनी मौजों के दरमियान वो कश्ती सेफली चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कश्ती जो लोग कश्ती में थे सेफ होने उन्हों। और नूह ने पुकारा अपने बेटे को, और वो एक किनारे की तरफ था। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था ऑब्वियसली, वो कश्ती के बाहर था, किनारे की तरफ था, कि ए मेरे बेटे, आओ हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसकी यहाँ तक कि कश्ती में अजाब होने के बाद अभी भी दावत दे रहे अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलाम, दावत दे रहे, अभी भी बुला रहे हक की तरफ। आओ हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसने कहा कि मैं अभी किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, कोई अच्छा पहाड़ पड़ा पहाड़ देख के चढ़ जाऊंगा मैं, कहीं को कश्ती में, मतलब कहीं को भाई मैं कश्ती में चढ़ जाता हूँ, कोई भी पहाड़ देख के पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा, वो पानी से बचा लेगा मेरे को। नूह ने कहा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहे आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई नहीं बचा सकता तुमको अल्लाह के हुक्म के सिवाय, अल्लाह के हुक्म से सिवाय उसके, अल्लाह के सिवा और अल्लाह का हुक्म आ गया है, अल्लाह के सिवा और कोई बचा नहीं सकता तुमको, उसी के सिवा जिस पर अल्लाह ही रहम फरमा दे। आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं है अल्लाह के हुक्म से, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ही रहम फरमा दे। अगर अल्लाह ही रहम फरमा देगा तो बच जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमा दिए कश्ती के अलावा और कोई, कश्ती में जो लोग हैं वो बचेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं बचेगा, रहम फरमा दे। और आ गई उन दोनों के दरमियान एक मौज। ये लोग बात कर रही थे कि दोनों के दरमियान एक मौज आके बहा के लेके चले गई उनके बेटे को। एक मौज, और वो हो गया गर्क होने वालों में, डूबने वालों में हो गया, डूब गया उन्हें। और हुक्म हुआ कि ए जमीन, तू अपने पानी को निगल जा। उसके बाद जब तमाम चीजें हो गई, तमाम लोग डूब गए, तो उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ए जमीन, तू अपने पानी को निगल जा, पानी को सोख, जमीन को हुक्म दिया कि तू निगल जा, यानी पानी सोख ले। हुआ कि जमीन तो अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान, तू भी अब थम जा। आसमान से भी हुक्म आ गया कि तू थम जा, बारिश रोक दे। और पानी सुखा दिया गया,
उसके बाद पानी जो था जमीन पर सूखा दिया गया, सूख गया। और फैसला और फैसला चुका दिया गया, फैसला हो गया, और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। और उसके बाद जब तमाम पानी सुखा दिया गया तो कश्ती ऐसे ही बहते हुए जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। जूदी ये पहाड़ तुर्की में है, आज भी मौजूद है। और फैसला चुका दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। और कह दिया गया, दूरी है उस कौम के लिए जो जालिम थे। जो जालिम लोग थे उस कौम के लिए दूरी है, वो लोग दूर चले गए तुमसे, अब कोई परेशानी नहीं है तुम्हें। और पुकारा नूह ने अपने रब को। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और कहा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल में से था, मेरे अहल में से था, मेरी औलाद था मेरा बेटा। और यकीनन तेरा वादा सच्चा है, और तेरा वादा सच्चा है, तू कहा था कि मेरे औलादों को बचा लें। और यकीनन तेरा वादा सच्चा है, और तमाम हाकिमों में सबसे बड़ा, तमाम हाकिमों में से, तमाम फैसले करने वालों में सबसे बड़ा है। और सबसे अच्छा फैसला करने वाला हाकिम है, सबसे बेहतरीन फैसला तेरा होता है, तेरे से बड़ा अच्छा फैसला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमा के, ए नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है, उसके अमाल गैर साले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे अहल में से नहीं था वो, जिसके अमल गैर साले थे, ठीक नहीं थे। कि अल्लाह ताला ने ये तो कहा था कि नूह अलैहिस्सलाम के औलादों को बचा लेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में ये भी कहा था कि तुम्हारी औलादों में जो ईमान वाले होंगे उनको हम बचाएंगे। ये था अल्लाह ताला। तो नूह अलैहिस्सलाम वही पूछने लगे, तूने कहा था मेरे बेटे को बचा लेगा, मेरा बेटा तो डूब गया, और तूने वादा किया था। तो अल्लाह ताला फरमाए कि मैंने वादा किया था कि तेरे अहल में से, तेरे बेटों में से जो ईमान वाला होगा उनको बचाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है, उसके अमाल गैर साले हैं, बहुत गैर काम है, गलत काम करता था वो। तो आप मुझसे उस चीज का सवाल ना करें जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। अगर आपको जिस चीज का इल्म नहीं है, अगर नहीं है इल्म, तो उसके बारे में मुझसे आप सवाल ना करें। आपको नसीहत इल्म नहीं है। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से ना बनिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जज्बात में आकर कुछ भी बातें मत कीजिए, आप जज्बात में से आकर फैसला करने वालों में से मत बनिए। ये नसीहत करता हूँ, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा। क्योंकि जज्बात में आकर इंसान सही फैसला नहीं कर सकता है। आज भी देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशन इन इस्लाम। इस्लाम में जज्बात की कोई जगह नहीं है। कि अगर हम इतिहास भी देखेंगे तो जज्बात की कोई जगह नहीं है इस्लाम में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के बेटे मर गए, लेकिन वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहे, सब्र किए, अल्लाह के ऊपर भरोसा किए। बहुत अय्यूब अलैहि सलाम की फैमिली की ले ली गई, उनको बीमारी में मख्तूल कर दिया गया, बीमारी में थे। उसके बाद भी उन्होंने अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं छोड़ी, जज्बाती होके फैसला नहीं लिए। जज्बात की कोई जगह नहीं। जज्बात में मखलूब हो जाने वालों में से ना बने। नूह ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ, तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। उससे कि मैं तुझसे ऐसी बात का सवाल करूं जिसके बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है, ऐसी बातों का तुझसे सवाल करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, पास कोई इल्म नहीं है। और अगर तूने मुझे माफ ना किया, और अगर तू माफ नहीं करेगा मेरे को, और मुझ पर रहम ना फरमाएगा, तो मैं हो जाऊंगा खसारा पाने वालों में से। मैं नुकसान उठाने, खसारा का मतलब नुकसान, मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हुक्म हुआ, ए नूह, उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ, सलामती और बरकत लेकर हमारी तरफ से उतर जाओ। जो आप जो आप पर भी होंगी, और उन उम्मतों पर भी होंगी जो आपके साथियों के नस्लों से वजूद में आएंगी। आपके और आपके लोगों के ऊपर हमारी सलामती और बरकतें तो हैं,
ان کے علاوہ ان لوگوں پر بھی ہوں گی جو آپ کے نسلوں سے پیدا ہوں گی، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے جو لوگ ہیں، ان کے بیٹوں سے پوتوں سے جو بھی ہوئیں گی نسلوں میں سے، ان پر بھی سلامتی ہوں گی، وجود میں آئیں گی۔ اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، کچھ اور قومیں ہوں گی ان میں سے ایسی جنہیں ہم دنیا میں کچھ فائدہ دیں گے، ان کی ایسی قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑیں گا۔ اس کے بعد دنیا میں فائدہ تو دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے، گناہ کریں گے، تو ہماری طرف سے ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔